Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Bless you, Jesus. Bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ. थैंक यू. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. हालेलुया. हालेलुया. Have a great day today. Good evening. Shalom. Hallelujah. Good, very, very early morning. Good midday to some people. Hallelujah. Thank you, Jesus. And to some, it's going to be good evening. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. दुआ करते हैं. सब मेरे साथ प्रार्थना करें. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Lord, we glorify you. Lord, we magnify you. Lord Jesus, you are the rock of the ages. You are our rock. Lord Jesus, our house is built on you. We are firmly secure, Lord. No wind that blows, no storm, no flood, no tsunami, no wave that can beat against the house can cause a devastation. We are firmly rooted in you, Lord Jesus. Thank you for building our house on you, in you, Lord Jesus. तेरा धन्यवाद. यीशु मसीह, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ. प्रभु, तेरे इन लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मलकियत गिल के लिए, भाई के लिए आप इन्हें आशीष दें. सिस्टर अंजू मसीह को ब्रिटेन से, प्रभु, आई ब्लेस हर. मे योर हैंड बी अपॉन हर. Lord, I bless brother Amrish Kumar. May your hand be upon him. Bless him. Use him in the ministry. I pray for brother Sahil from Pakistan. Bless him. Bless all his loved ones. Bless his nation. May your spirit move in Pakistan, Lord. Lord, I cover Sabi Surjeet and his mother. I pray for his mother particularly for healing. For his father also for healing, Lord. For his family, for your divine blessing. Father, I commit Sunita Kaur from England into your hand, her daughters into your hand. I speak blessing. I pronounce blessing over this lady, over her household in the mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, your purpose, your plan, and your objectivity shall be accomplished in the life of her daughters. Hallelujah. You have great and mighty plans for them. Father, I commit Renu Bala into your hand. Father, I pray for Ravi Prakash Gupta. He is in the Philippines on the ship, Lord. I bless his wife, his son, his family. Cover them under the blood of Jesus. I pray for Harpal Singh. Bless him, Lord. Lord, I pray for Millie Sehgal from Australia. Lord, she is your child, your daughter, and she longs to serve you. And her heart's desire is to make your glory manifest. So use her, Father. Equip her, grant her necessary tools and skills in the spirit that she requires, Father. Bless her husband, bless her children in the name of Jesus. Lord, I bless brother Lalit Mehra. Bless him, bless his business. Whatever he may lay his hand on, you may prosper him. Lord, I pray for his wife to turn to you, his children, and his in-laws, and also his parents who are in Uttarakhand. I speak your blessing, Lord. Lord, I bless Sonia Nar. She is your daughter. She loves you. And she strives to make you known, and she strives to scatter the fragrance of your love. So I pray, Lord, that you will teach her your ways and you will bless her, I pray. Lord, I also bless Sunita Guria Kanswar, Lord. She loves you and she wants to grow in you deeply, Lord. Take her to the deeper levels and take her to the higher echelons in the spirit, I pray, Father, and her family. Hallelujah. Father, I also bless brother Suresh Kumar. I pray for your blessing over Suresh Kumar. I pray for your hand over his family, over his household in the mighty name of Jesus. I bless Gurmeet Gill, Lord. I speak anointing, favor and blessing over Gurmeet Gill. Lord, I bless Sister Ashana Paul from Chandigarh. May your hand be upon
upon her husband, upon her family, and upon their ministry, Lord. I pray for Devinder Singh from Jammu Kashmir. Lord, bless him. Bless his wife and use this man as he testifies to others about your love. Father, I bless Anil Kumar from Britain, my brother. May your hand be upon him, his 2 daughters, his wife. Use them for your glory. I bless Brother Darshan Singh from Jalandhar. I pray for his children. Lord, make his children navigate through this dark time through the light of your Spirit. Inundate them with the light of your Spirit, Father. Bless his household in Jesus' name. Brother Mangal Thapa, I pray for his daughter Khushi. I pray for his family. Father, I pray that through him Nepal will be shaken by your power. Hallelujah. Thank you, Lord. I pray for Amarjeet Kaur. I bless Amarjeet Kaur. Under the blood of the Lamb, I bring her and her husband. I bring them under the blood of the Lamb. I bring their daughter and I bring this woman's grandchildren under the blood of the Lord Jesus of Nazareth. Bless them. Bless the work that her husband does. Father, I bless Robbie John. Lord, bless Robbie John. Bless the seed that Robbie John has planted into your kingdom. Lord, give him 1,000-fold return on his seed. As you promised that you will give increase 1,000-fold in Deuteronomy chapter 1 verse number 11. 1,000-fold increase for Lord Sister Anju from Britain. 1,000-fold based upon Deuteronomy 1:11. Lord, bless Brother Raman Khan. May your hand be upon him, upon his mother, upon his wife. Lord, such wonderful ladies you have blessed this man with, his mother and his wife. Such noble women. And his daughters, may your hand be upon his daughters, Lord. May they continue to grow in the fear of the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. We bless you. I bless Marcus Randhava. Lord, bless Marcus Randhava. May your hand be upon Marcus Randhava. I pray for Brother Manor from Delhi. Lord, bless Brother Manor, his wife, his children, his brother who has accepted you, his brother's family, and his loved ones in Himachal Pradesh. Bless them all, Lord. I bless Urmila Devi. May your hand be upon Urmila Devi. Lord, I bless Rakesh Kumar from Mathpur. Rakesh Kumar ko chhuye aur barkat de. Bless his family, all his loved ones, and even my mother Leela Devi. May your hand be upon her. I bless Lord Emmanuel Sahota. May your hand be upon his family. Lord, I also pray for Himachal once again, for Urmila Devi and Himachal. May your spirit move, Lord, in Himachal. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. You are God of the mountains. May you possess those high peaks. They belong to you, Lord God. May your spirit move like never before. God, you said I will answer you by fire. We claim Himachal. We claim Uttarakhand. We claim the hills of Jammu and Kashmir, Lord. Hallelujah. We claim the hills in Nepal for the glory of Jesus. We claim Himalayas in the name of Jesus, Lord. Lord, we pray for Gurdeep Singh. Gurdeep Singh को छू, अपना हाथ गुरदीप सिंह के जीवन पे रख. हेवन जीसस जो अमृतसर से हैं, खुदावंद मैं उनको, ये मिनिस्ट्री को आपके हाथ में देता हूँ. खुदावंद मैं और प्रार्थना बिनतियाँ जो लोगों ने भेजी हैं उन सबको आपके आगे लाता हूँ. पूनम गिल की फैमिली की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको आपके आगे लाता हूँ. खुदावंद आपका हाथ हो खुदावंद. Hallelujah. Lord, I also bless Sister Priyanka Christian from Canada. Bless her husband, bless her family. Teach her your wisdom, Lord. Equip her in these dark days with the light of God. Lord, many will fall away. Many will turn away, deviate from the true path. Many will embrace heretical teachings. Many will be seduced by the seducing spirits, as your word says, pleno numa. And Lord, many will fall prey to the doctrine of demons. Many will be carried away by pride, self-glory, self-promotion. Many will fall into the clutches of greed and money and material things. But Lord, only they who fear you, Lord, only they who love you, only they who will mortify their bodies and put themselves on cross and only would live for your glory and exaltation, you are going to take them to the next dimension. You don't take your people to levels, you take your people to dimensions. I pray for Millie Sagal, Lord, as she is requesting for her family, Lord, that you will protect her. Such an alien culture is engulfing so-called Christian countries, Britain, Canada, America, Australia, New Zealand. Lord, these people are being deceived in a big way
End time deception is falling, Lord. Protect your people. Hallelujah. Protect your people, Lord God. I pray for Richa Masi. I cover Richa Masi under the blood of the Lamb. I pray for her family, Lord, that you bless her family in the mighty name of Jesus. Lord, I also pray for Reverend James Jaya Kumar. May you bless him. I pray for Gaurav Kumar from Chandigarh. May your hand be upon him. So, Lord, I cover all these friends who are ऑनलाइन राइट नाउ अंडर द ब्लड ऑफ द लैम्ब. तेरे खून में नहीं छिपाता हूँ. तेरी आशीष दे. आज के कलाम को खोल खुदावंद अपने रूह के द्वारा और हमें सिखा, तेरी राह सिखा खुदावंद, यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आज का जो शीर्षक है, टाइटल है, दैट इज ब्लेसिंग एंड कर्सेज एंड यू मेक योर डिलिबरेट चॉइस. परमेश्वर हमारे आगे चॉइस रखता है. परमेश्वर कभी भी हमें फोर्स नहीं करता किसी चीज़ के लिए. परमेश्वर चाहता है वॉलंटियर्स. परमेश्वर के राज्य में फोर्सफुल कॉन्वर्ट्स नहीं होंगे. धर्म परिवर्तित लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे. स्वर्ग के राज्य में वॉलंटियर्स होंगे जिन्होंने अपनी इच्छा से यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है. हालेलुया. तो मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से कुछ गहरी बातें आज आपको बताना चाहता हूँ. हम सभी जानते हैं परमेश्वर के अद्भुत दास मूसा के विषय में. प्रभु उसके विषय में क्या कहता है? प्रभु कहता है कि नबियों से और सीयर से तो मैं दर्शन से या दबार से, दबार मीन्स द ऑरेकल, द वर्ड. गॉड सेज आई यूज टू सेंड दबार और द ऑरेकल टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड सीयर्स. लेकिन मोजेस से मैंने फेस टू फेस बातें की हैं. हिब्रू वर्ड है, मोजेस यूज टू सी द सिमिलिट्यूड ऑफ गॉड. Since nobody can see God and yet live, so Moses used to see the similitude, the glory of God. लेकिन मोजेस एक इतना ज़बरदस्त खुदा का बंदा था. प्रभु खुद उसके लिए गवाही देता है कि मेरे घराने में सबसे हलीम. आपको मालूम परमेश्वर कौन सी गवाही देता है? परमेश्वर ये गवाही नहीं देता कि मेरे घराने में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, मेरे घराने में सबसे ज़्यादा मिरेकल हीलिंग करने वाला, मेरे घराने में सबसे ज़्यादा चमत्कार करने वाला, मेरे घराने में सबसे ज़्यादा प्रोफेसी करने वाला, मेरे घराने में सबसे ज़्यादा वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज डिलीवर करने वाला. परमेश्वर यही गवाही देता, मेरे घराने में सबसे हलीम, हम्बल, ह्यूमिलिटी. दैट्स द हॉलमार्क, दैट्स द ओनली ऑर्नामेंट दैट ए क्रिश्चियन मस्ट हैव. ह्यूमिलिटी. God testifies about Moses that he was the most humble person in his household. Yet we see that he lost his temper. लेकिन आपको मालूम, जब उस चट्टान के पास मोजेस और एरन खड़े हैं तो वो क्या कहते हैं? हम्बल बंदा क्या कहता है? मे बी ए ब्रीज ऑफ प्राइड ब्लू देयर व्हेन nearly 2.5 million people were pressurizing him and his brother. तो मोसेस क्या कहता है? कहता हम परमेश्वर हैं तुम्हारे लिए. आर वी एलोहिम? एम आई याहवे दैट आई शुड ब्रिंग वाटर फॉर यू? तो प्रभु को बहुत बुरा लगा. प्रभु ने कहा तूने मुझे महिमा नहीं दी. मोसेस ने अपनी और महिमा खींचनी चाहिए. आर वी एलोहिम्स? इतनी सी बात के कारण, क्योंकि उसने प्रभु को महिमा नहीं दी, प्रभु ने कहा तू उस देश में नहीं जाएगा जिस देश की चर्चा परमेश्वर मोसेस के साथ 40 साल करता रहा. और इतनी परिश्रम मेहनत किया उसने. लगभग 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को निकाल के लाया मिस्र की गुलामी में से. इतने अजीम काम किए जिसके द्वारा, जिसके लिए प्रभु कहता है मैं इससे फेस टू फेस बातें करता हूँ. और जिसके लिए प्रभु ने टेस्ट बनी दी कि सबसे हम्बल बंदा मेरे घराने का, उसको भी प्रभु ने जाने नहीं दिया. कहाँ पे? उस वायदे की धरती में जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं. मैं आपको काफ़ी कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप निकाल लीजिए ड्यूटरॉनमी की पुस्तक. ड्यूटरोनोमोस इसे बोलते हैं. ड्यूटरोनोमोस, दूसरी बार दी गई व्यवस्था, रिपीट की गई व्यवस्था, ड्यूटरोनोमोस. तो ड्यूटरॉनमी निकालें, उसका आप 27 चैप्टर जल्दी से निकाल लीजिए. व्यवस्था विवरण का 27 अध्याय. और मैं उसके कुछ वचन आपके लिए पढ़ता हूँ.
सुनिए ध्यान से। एंड मोसेस विद द एल्डर ऑफ इजराइल कमांडेड द पीपल सेइंग कीप ऑल द कमांडमेंट्स व्हिच आई कमांड यू दिस डे। मूसा इसराइली लोगों को आखिरी उपदेश दे रहा है और क्या कह रहा है, सभी बुजुर्गों को इकट्ठे करके, यहोवा अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानना जो मैं आज तुम्हें देता हूँ। मूसा को पता है कि मैं कनान में नहीं जाऊँगा जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। वचन में लिखा है, मोसेस ने क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री में, मोसेस ने मिस्र का एम्परर बनना नहीं चाहा, बल्कि उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना चाहा, क्योंकि मोसेस एक और किंगडम को देखता था, एक और राज्य को, एक देश को जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, लेकिन वहीं पे जाने से वंचित हो गया प्राइड के कारण। जरा सोचिए, मोसेस ने परमेश्वर को जलाल नहीं दिया, प्रभु को उसने कहा एम आई एलोहीम दैट आई वुड ब्रिंग वाटर फॉर यू, गॉड सेड यू स्टोल माई ग्लोरी। अब आप जरा कल्पना करें, आज के जो झूठे प्रॉफिट और झूठे अपोस्टल परमेश्वर की ग्लोरी को चोरी करते हैं। प्रभु ने उसको जाने नहीं दिया और मोसेस बहुत हम्बल बंदा है, फिर भी उसने परमेश्वर के निर्णय को सर माथे पे लिया और इस्राएल को आखिरी मैसेज दे रहा है कि प्रभु की सब आज्ञाएं मानना। एंड इट शैल बी ऑन द डे व्हेन ई शैल पास ओवर जॉर्डन अनटू द लैंड which the Lord thy God giveth thee, that thou shalt set up great stones and plaister them with plaister. Hallelujah. And thou shalt write upon them all the words of this law when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which Lord thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey, as the Lord God of thy fathers hath promised. प्रभु का दास कहता है कि उन पत्थरों के ऊपर कलाम को लिख के जैसे लेमिनेट कर देना, क्योंकि वो जानता है तुम भूल जाओगे। तुम यहोवा के बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े कारनामों को, बड़े बड़े मिरेकल को, बड़े बड़े अद्भुत कामों को भूल जाओगे, तो उनको स्टोन्स के ऊपर एनग्रेव करना ताकि तुम्हारी अगली जनरेशन्स भूले ना। हालेलुया। ये देखिए कितने हैवी हार्ट से ये मैसेज दे रहा होगा बंदा। उसको मालूम है कि मैं नहीं जाऊंगा उस देश में, पर यहोवा की प्रजा को इक्विप कर रहा है। इसका 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एंड मोसेस सेड टू द प्रीस्ट एंड लीवाइट्स unto all Israel, saying, take heed and hearken, O Israel, this day thou art become the people of Lord thy God. आज तुम Lord thy God, याहुआ एलोहीम की प्रजा बन गए हो। याहुआ एलोहीम हिब्रू वर्ड है। Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God and do his commandment and his statutes which I command thee this day. उसकी आवाज को सुनना, परमेश्वर बोलेगा, उस आवाज को सुनना और उसकी कमांडमेंट और स्टैच्यू जो रिटन फॉर्म में है उनको मानना। जो तुम्हारे से रोज बातें करेगा परमेश्वर का आत्मा, वो भी मानना, और जो लिखा हुआ वचन है वो भी मानना। कमांडमेंट एंड स्टैच्यूज, उनको मानना, चौकसी के साथ पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किया जाता है, आगे आप पढ़ेंगे इसका 11वां वचन। And Moses charged the people the same day, saying, These shall stand upon Mount Gerizim to bless the people when ye are come over Jordan. Simeon, Levi, अगर आप पढ़ेंगे डिटेल, मोसेस क्या कहता है कि तुम शिकेम में जाओगे। अभी उसके विषय में मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक बहुत स्ट्रेटेजिक सिटी है शिकेम। शिकेम एक वैली है, ऐसे यूँ वैली है, उसके राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ माउंटेन्स हैं। एक माउंट का नाम है ईबाल, दूसरे माउंटेन का नाम है गिरजीम। और परमेश्वर का दास मूसा क्या आज्ञा देता है कि इन दोनों पहाड़ों के इर्द गिर्द तुम खड़े हो जाना। 6 ट्राइब इधर खड़े हो जाना, 6 ट्राइब इधर खड़े हो जाना। एक माउंट होगा माउंट ऑफ कर्सेस, दूसरा माउंटेन होगा माउंटेन ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। तो चलिए मैं आपको कुछ और वचन देता हूँ। ड्यूटरॉनमी में ही चलें, उसका 29 चैप्टर निकालें जल्दी से। ड्यूटरॉनमी 29 चैप्टर और उसका मैं 24-25 वचन पढ़ता हूँ। सुनिए ध्यान से। ड्यूटरॉनमी 29 का 24-25। Even all nations shall say, Wherefore hath the Lord done this unto this land? What meaneth the heat of this great anger? Then men shall say, Because they have forsaken the covenant of the Lord God their Father, which he made with them when he brought them forth out of the land of Egypt. Hallelujah. 28 चैप्टर पढ़िएगा, अपने घर में लिख के लगाइए 28 चैप्टर।
28 चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी, अगर उसके पहले 14 वचन पढ़ेंगे, रिमार्केबल, अनप्रेसिडेंटेड, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग ब्लेसिंग्स परमेश्वर देगा। किन्हें? शर्त क्या है? पहला वचन 28 चैप्टर का फर्स्ट वर्स, एंड इट शैल कम टू पास इफ thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. If you hearken unto the voice, which means if you keep daily ongoing relationship with the Lord, daily you hear him live daily, you have a relationship with him. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord, if it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, उसकी आवाज़ को सुनोगे जब वो बोलता है, और उसकी commandments को, मिज़वा, that I command thee on this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. God will make you a nation above all the nations of the earth. You will be on the pinnacle, the apex of all humanity. You will be, if you hear him daily. That means you have an engaging relationship with him. आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे रोज, और आप यहोवा को धर्म नहीं बनाएंगे। उसकी आवाज़ को सुनना है डेली, और जो आज्ञाएं लिखी हैं, स्टैच्यूज, मिसबाज, मैंने आपको बताया 8 अलग अलग वर्ड्स हैं परमेश्वर के वचन के लिए, दबार, इमरा, मिसबा और शोफटीम, अलग अलग वर्ड्स हैं। प्रभु कहता है उनको किधर रखेगा? इधर रखेगा। तो ब्लेसिंग है, इनक्रेडिबल ब्लेसिंग है। और अगर आप पढ़ेंगे 68, 14 से लेके 68, 15 से 68 कितना हो गया? ऑलमोस्ट 53 कर्सेस हैं, ये तुम्हारे ऊपर आएंगे। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे, ये कर्सेस तुम्हारे ऊपर आएंगे। ब्लेसिंग आएंगी अगर हृदय से मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे स्टैच्यूज, मेरी डिक्रीज को मानोगे। बट इफ यू वोंट, देन ऑल दीज कर्सेस विल कम अपॉन यू। आपको मालूम, इज़राइल एक ऐसी कौम है जिसकी लाइफ में 15th वर्स ऑफ 28th चैप्टर ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के 15 वचन से लेके 68 वचन तक जितने कर्स हैं सारे इनके जीवन में आए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है कि ब्रोकन कवनेंट, 29 चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 26 वचन, 26 वचन, व्यवस्था विवरण 29 का 26। फॉर दे वेंट एंड सर्व्ड अदर गॉड्स एंड वर्शिप देम, एंड गॉड्स whom they knew not, and whom he had not given unto them. And the anger of the Lord was kindled against this land, to bring upon it all the curses that are written in this book. डैनियल 9 का 11 पढ़ लीजिएगा। डैनियल नबी वो सारे कर्सेस जो इज़राइल पे, उनकी कौम पे आए, उनको एक एक करके प्रार्थना करके परमेश्वर के आगे अंगीकार करता है, और परमेश्वर से याचना करता है कि ये श्राप जो हमारे जीन्स में, the curses that are running down into our DNA, into our RNA, the curses that our ancestors accumulated into the information of their DNA, they have been passed on unto us. O Almighty God, may you condone those iniquities and wicked deeds that our ancestors did, that have been written down in the annals of heaven against us. May you rid us of all those vicious demonic memories that are haunting our generation. We stand in the gap and we identify with those sins. Would you kindly pardon us? आप हमें क्षमा करें। दानियल ये प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे। कर्सेस और ब्लेसिंग रियल एंटिटीज हैं, ये स्पिरिट एंटिटीज हैं, कर्सेस और ब्लेसिंग्स। आप वचन को ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह के क्रूस की आमद के बाद ब्लेसिंग और कर्सेस का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि वो वचनों को, वर्ड्स को जो एपिसल्स के अंदर लिखे गए हैं, कोलोशियंस में, गलेशियंस में और एफिशियंस में, फिलिपियन में, उनको
प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करते। Christ is the end of the law. The Greek word is polero. Christ is actually the pinnacle of the law. He is the fulfillment of the law. यीशु मसीह ने कहा एक टिटल और जॉट भी कभी मिटेगी नहीं इसमें से, व्यवस्था में से। पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, हालेलुया, उसकी एक भी बात टलेगी नहीं। प्रेरित पौलुस जिसने अनुग्रह का, ग्रेस का जबरदस्त पैगाम यहोवा से पाया, पिता से पाया और गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को प्रीच किया, वही जाके गलेशियंस, गलतियों की पत्री 6 चैप्टर के 5th और 6th वर्स में कहता है, व्हाटसोएवर अ मैन सोएथ सो शैल ही रीप ऑल्सो। क्या कहता है? डू नॉट बी डिसीव्ड फॉर गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। धोखा मत खाओ क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता धोखा मत दो। आप कभी इतने स्मार्ट नहीं हो सकते कि आप परमेश्वर को धोखा दें। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग इन द यूनिवर्स। सबसे इंटेलिजेंट है यहोवा, स्मार्ट है, उसको आप कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यहोवा को धोखा दे रहे हैं तो हकीकत यह है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कलाम ये नहीं कहता परमेश्वर को धोखा ना दो, कलाम कहता धोखा मत खाओ क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। Whatsoever a man soweth, so shall he reap also. This truth from God's word, Paul is describing as he is writing his epistle to the Galatians. This is post-cross. This is not pre-cross. Whatsoever you sow, you will reap. If you sow carnality to the flesh, you will reap corruption. If you sow to the Spirit, you will reap everlasting life. So sowing and reaping hasn't been abrogated by God because of the cross of Jesus Christ. It still continues. Do not be fooled by the hyper grace theology. This is continuing. This is Paul writing after the cross to the church at Galatia. कि जो कुछ मनुष्य बोता है वो मनुष्य काटेगा भी, हालेलुया। तो परमेश्वर का दास एक वचन बताता है, परमेश्वर का दास कहता है कि ब्रोकन कवनेंट की वजह से, क्योंकि कवनेंट ब्रेक किया गया इसलिए सब कर्सेस इनके ऊपर आए। और लिखा एंड द लॉर्ड रूटेड देम, 28th वर्स पढ़ें, 29th चैप्टर व्यवस्था विवरण 28 का 28 वचन, व्यवस्था विवरण 28 29 का 28, एंड द लॉर्ड रूटेड देम आउट ऑफ their land in anger and in wrath and in great indignation and cast them into another land as it is today. Because they broke the covenant. They did not keep the clauses in the covenant. You want the blessings, but you do not want to keep the clauses in the covenant. Covenant is an agreement. You know, this book, ये जो किताब है बाइबल, this book is not a religious book. This book wasn't given for religious purposes. This book is not a book of philosophy or ritual or tradition or ceremonies. This book, its original name was not Bible. इस किताब का असली नाम बाइबल नहीं था। आपको मालूम, बाइबल इसको नाम 2nd सेंचुरी के एंड में दिया गया, इनफैक्ट बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी में। बाइबल को जब आप खोलते हैं ना अंदर से, तो अंदर आपको मिलता है पुराना नियम और फिर मिलता है नया नियम। ये क्या है? परमेश्वर का करारनामा है, हालेलुया। इसे नए नियम को कहते हैं नोवम टेस्टामेंटम, लैटिन में नया नियम, हालेलुया। और ग्रीक में इसे कहते हैं डायाथेके। ये एग्रीमेंट है परमेश्वर का, परमेश्वर का करारनामा है। इसके अंदर क्लॉजेस लिखी गई हैं, शर्तें हैं करारनामे की। ये रिलीजियस बुक नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक टू सर्व ए रिलीजियस पर्पस। दिस इज द एग्रीमेंट दैट गॉड मेड बिटवीन हिम एंड द मैनकाइंड थ्रू द ब्लड ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो कवनेंट टूटा तो वचन में क्या लिखा है? श्राप, लानतें आएंगी। और यहाँ पे लिखा है, जो मैं वचन पढ़ रहा था 29 चैप्टर के लास्ट वचन को पढ़ता हूँ। वचन में लिखा है, ही रूटेड देम आउट ऑफ देयर लैंड इन एंगर एंड इन रॉथ एंड इन ग्रेट इंडिग्नेशन एंड कैस्ट देम इनटू अनदर लैंड।
पर जब व्यवस्था टूटेगी आपको कैप्टिविटी में जाना पड़ेगा. You have to go into the bondage, slavery. Whenever you break the covenant of God, you will not reside in the land that God has for you. You will never live in the land of your destiny. आप अपनी डेस्टिनी के बाहर रहेंगे जब आप परमेश्वर की व्यवस्था, जब भी आप परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ेंगे. उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की पूजा की, उन्होंने शिनाले के काम किए, उन्होंने परमेश्वर के कवनेंट को तोड़ा. तो लिखा है सीक्रेट थिंग्स बिलोंग टू द लॉर्ड अ गॉड बट दोज थिंग्स विच आर रिवील्ड बिलोंग टू अस एंड टू अ चिल्ड्रन फॉर एवर दैट वी मे डू द वर्ड्स ऑफ दिस लॉ, ताकि हम इस व्यवस्था की बातों को माने. मोसेस ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा बट तुम जाना, और जो वो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर क्या करना, जाके एक पहाड़ पे 6 ट्राइब खड़े होंगे, दूसरे पहाड़ पे दूसरे 6 ट्राइब खड़े होंगे. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो शिकेम जो है बहुत प्रोमिनेंट सिटी है. मैं अभी इसकी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा. इट्स कनेक्टेड विद जोसेफ एंड इब्राहिम एंड यू नो इट हैज़ अ वेरी रिच हेरिटेज. तो आज ये वेस्ट बैंक में आपको मिलेगा. वेस्ट बैंक में नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड अगर आप ट्रैवल करेंगे यरूशलेम से तो आपको वेस्ट बैंक पे मिलेगा, सामरिया के रीजन में. और शिकेम जो एक वैली है, इसके राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ पे माउंटेन है, और ये मेडिटरेनियन सी के बिल्कुल पास है. मेडिटरेनियन सी के पास है. अगर आप जाएंगे ना ब्रिटिश म्यूज़ियम में, ब्रिटेन में जाएं, ब्रिटिश म्यूज़ियम में अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक गैलरी है जहाँ पे आपको एक सेक्शन में मिलेंगे आर्माना लेटर्स. आर्माना लेटर्स कुछ क्ले के ऊपर और कुछ मेटल्स के ऊपर लिखे हुए हैं. उनमें से एक पूरा आर्माना लेटर है जो इज़राइली लोग शिकेम में गए, कनान में गए, और जब जॉर्डन क्रॉस करके गए और इबाल माउंट पे खड़े हुए और गिरजीम माउंट पे खड़े हुए और जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन की उसके विषय में आर्माना लेटर्स जो हैं ये उस समय की जो वहाँ की कौमें थी जो कनान में रह रही थी, कनानी, हित्ती, जबूसी, हाइटाइट, गिरगिसाइट, उन लोगों ने इनके विषय में जो लिखा है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वहाँ पे पड़ा. आज के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट डिनाई करते हैं कि जोशुआ की कॉन्क्वेस्ट का कोई ट्रेस नहीं है वहाँ पे. इट्स अ मिथ, बट दे लाई आउट राइटली. आपको मालूम क्या लिखा हुआ उन्होंने वहाँ पे? उन्होंने वहाँ पे उस क्ले, उस जो प्लेट्स हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा है हापरू पीपल. हिब्रू को उन्होंने लिखा हुआ हापरू पीपल. ये यरूशलेम से 25 to 30 माइल्स ऑफ नॉर्थ की ओर जाएंगे. अगर आज आप वहाँ पे जाएंगे तो आज आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? आज आपको वहाँ पे एक सिटी मिलेगा जो कि फिलिस्तियों के हाथ में है, और सिटी का नाम है नोबुलस. ये एंशंट शिकेम है लेकिन अभी इस पे फिलिस्तियों का कब्जा है. और नोबुलस सिटी बड़ी प्रोमिनेंट है वहाँ पे फ़लस्तीनियन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सिटी है, जितने ये माउंटेन्स हैं, अगर आप वेस्ट बैंक की तरफ चले जाएं, जितने छोटे छोटे माउंट हैं वहाँ पे टेररिस्ट कैंप चलते हैं फ़लस्तियों के. फ़लस्ती अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं कि जूस लोगों को मारो जाके, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि यहूदियों को मारने से जन्नत मिलती है और काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है. तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म के. नोबुलस के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको म्यूज़ियम मिलेंगे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे फ़लस्तियों के जिन्होंने यहूदियों को मारा जाके, सुइसाइड बॉम्ब या ऐसे खंजर खुखरी मार के मारा, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं. वो हीरोज़ हैं उन लोगों के. आपको मालूम जाशुआ इज़राइल को लेके गया. मैं चाहता हूँ कुछ वचन हम पढ़ें. मोसेस ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपने करना है. तो मोसेस ने बोला मैं तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहोवा मुझे वहाँ जाने की अनुमति नहीं देगा. और नीबू पहाड़ पे मूसा की मौत हो गई. तो लेकिन उसने पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया जाशुआ के लिए. तो एक वचन पढ़ें आप जल्दी से. यहोशू की किताब निकाल लें जल्दी से, बुक ऑफ जाशुआ, और उसका हम 24 चैप्टर निकालें. जोशुआ 24 और जोशुआ 24 और उसका मैं 15 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ.
ध्यान से सुनिएगा। Joshua 24 verse number 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye shall serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or gods of the Amorites in whose land you dwell now, but as for me and my house we shall serve the Lord our God। तो जाशुआ उनको लेकर आता है, और जाशुआ क्या करता है, उन लोगों के आगे ऑप्शन रखता है कि तुम क्या चुनोगे। तुम उन देवताओं की पूजा करना चुनोगे जिनकी तारा, नहौर और इब्राहिम करते थे मेसोपोटामिया में, वो देवी देवते, उनकी पूजा करोगे, या अब जिस देश में तुम आ गए हो जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, यहाँ पे 7 अलग अलग कौमें हैं, और मैंने आपको बताया था ये सातों की सातों जो कौमें हैं हाइब्रिड हैं, और ये फॉलन एंजल्स की उपासना करते हैं, डीमंस की और फॉलन एंजल की, नफलीमों की और गिबरीमों की और हाइब्रिड की ये पूजा करते हैं, जो अलग अलग कौमों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग धर्मों के पैंथियॉन के देवी देवता हैं। क्या तुम उनकी पूजा करोगे जो उधर करते थे, या तुम इनकी करोगे? मैंने आपको बताया ये वही वॉचर्स हैं जिन्होंने 70 वॉचर्स जिन्होंने जब परमेश्वर ने डिवोर्स किया दुनिया को बाबुल के बुर्ज के समय, इनके हवाले दुनिया को कर दिया। फिर ये वो लोग हैं जो 6th चैप्टर ऑफ जेनेसिस के डीमंस हैं जिनको यहोवा ने डिस्ट्रॉय किया। फिर इनका कनेक्शन किससे है? 14 अध्याय यशायाह की पुस्तक नखाश से, जिसका नाम हिलेल है, हिलेल शैतान, और 28 चैप्टर ऑफ इज़िकियल। तो ये वही डीटीज़ हैं स्पिरिट रेल्म के जिनकी दुनिया पूजा और उपासना करती है। तो यहोशू कह रहा है कि तुम किसकी पूजा और उपासना करोगे? बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी शैल सर्व द लॉर्ड अवर गॉड। अब सुने, एंड द पीपल आंसर्ड एंड सेड गॉड फॉरबिड दैट वी शुड फॉरसेक द लॉर्ड टू सर्व अदर गॉड्स। इज़राइल बार बार अपने मुंह से अंगीकार करता है, अपने मुंह से बड़ा बोल बोलता है इज़राइल, इज़राइल के पुरनिये, इज़राइल के गोत्र, इज़राइल के बुजुर्ग लोग, लेकिन वो बार बार यहोवा की व्यवस्था को तोड़ते हैं। दे स्पीक, कन्फेस विद देयर माउथ एंड दे ब्रेक। और क्या लिखा है? फॉर द लॉर्ड अवर गॉड ही इट इज दैट ब्रॉट अस अप एंड आवर फादर्स आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉन्डेज, एंड विच डिड दोज ग्रेट signs in our sight and preserved us all in the way wherein we went and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore we will serve the Lord our God. हम अपने प्रभु यहोवा की पूजा, यहोवा की सेवा, यहोवा की उपासना करेंगे। और क्या लिखा यहाँ पे? और इसका मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 19 वचन। Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is holy God. He is jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Joshua knows God very very closely. क्या कहता है जाशुआ परमेश्वर के विषय में? क्या कहता है? He is holy God. He has served God. He has seen the hand of God. He has seen the might and power of God. He has seen God decimating those hybrid enemies, those armies that stood against Israel. He saw that there were Anakims, huge giants that possessed this land of promise. There were 7 nations that dwelt in this land, and all 7 were carrying the hybrid seed, hybrid DNA. उनको इंसान जीत नहीं सकता था जो कनान में रहते थे, क्योंकि वो मनुष्य नहीं थे, वो शैतानी दानव थे जिनको इंसान अपने युद्ध कौशल से, अपनी भुजाओं की ताकत से जीत नहीं सकता था। यहोशू को मालूम है, जाशुआ वॉज अ वॉरियर, ही सॉ ऑल दिस, ही सॉ नफलीम बड़े बड़े। मैंने आपको बताया उनके मुंह शेर के थे, कईयों के शेर के मुंह थे और बाकी बॉडी ह्यूमन की थी। उनके 6 बड़े बड़े पाँव, बहुत बड़े बड़े पाँव थे, बड़े 6 टोज, 6 उंगलियां, बड़े बड़े अजीब किस्म के दानव थे। कई बड़ी दाढ़ी वाले दानव थे,
हिब्रू के अंदर वर्ड मिलेंगे आपको कई रिच जैसे से, उनका चेहरा रिच की तरह था और बॉडी पे रिच की तरह बाल थे और उनके नाखून और पंजे रिच्छों की तरह थे। ये सब हाइब्रिड नेशन थी जो कनान में रहती थी। कनान कौन है? कनान वो है जिसको नूह ने श्राप दिया था, हाम का पुत्र, कर्स्ड बी केनन। और कनान के अंदर नफलीमों का बीज था और ये सारी सातों की सातों जो जातियां थीं, ये 7 एंट्री पॉइंट पे बैठी थी इज़राइल के लिए, ताकि इज़राइल कनान की धरती में दाखिल ना हो सके। तो सबसे खतरनाक एरिया था जेरिको। मैंने आपको एक दिन प्रचार में बताया था, जेरिको वॉज पावर हाउस, दे वर जनरेटिंग सैटेनिक पावर। वहाँ पे वो शैतानी रिचुअल करते थे, बच्चों को कोख से निकाल के पत्थरों के अंदर चुन देते थे। वो दानव जो थे, उसकी जो नगर उन्होंने बनाया था, मैंने आपको बताया, उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई और वो साइक्लोपियन स्ट्रक्चर थे। साइक्लोपियन स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो इमारतें जो नूह के फ्लड से पहले बनाई गई। वो नूह के फ्लड को सरवाइव कर गया था जेरिको, उसको पाउडर में बदल दिया यहोवा ने, लेकिन उसकी फाउंडेशन को डिग कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और वो हैरान है कि इतने बड़े बड़े स्टोन, बहुत बड़े बड़े हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टन्स के स्टोन्स हैं जिनको प्रिसाइजली काटा गया। वो जो दीवारें बनी थी उनके अंदर चूना नहीं लगाया गया था, सीमेंट या प्लास्टर नहीं किया गया था, वो प्रिसाइजली काटे गए थे और स्टोन के ऊपर स्टोन रखा गया था। लेकिन वो इतने टाइट थे स्टोन के अंदर स्टोन कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आप पेपर भी नहीं घुसेड़ सकते उनके अंदर। इतना प्रिसाइजली कैसे काटा गया? मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो नेज़ल से अपनी नथनों से साउंड निकालते थे और साउंड के द्वारा वो स्टोन लेविटेट करते थे, फिर उस टेक्नोलॉजी से वो उन्हें काटते थे और वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे। और अभेद किला था जिसे मनुष्य जीत नहीं सकता था यरीहो, यहोवा ने इज़राइल के हवाले किया। सबसे खतरनाक टेरिटरी से यहोवा लेकर आया। यहोवा ने उन हाइब्रिड को नाश किया, मारा इज़राइल के आगे नफलीमों को, क्योंकि शैतान की शुरू से ये स्ट्रेटजी है कि इंसान के डीएनए को पोल्यूट करे। दैट इज़ व्हाट ही वांट्स टू डू। यीशु मसीह बताते हैं कि एक व्यक्ति ने अच्छा बीज बोया खेत में। सुबह उसके नौकरों ने आके बोला, स्वामी आपने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन जंगली बूटी कहाँ से आई? तो स्वामी जान गया, उसने कहा ये दुश्मन का काम है। शैतान केवल टेयर्स बोता है, जंगली बूटी बोने का काम शैतान करता है। ये जंगली बूटी, ये हाइब्रिडाइजेशन अभी हो रही है इस पृथ्वी पे। डीएनए को स्प्लिट किया जा रहा है, मैंने कई बार आपको मैसेज दिया इसके ऊपर। डीएनए को रीसीक्वेंस किया जा रहा है। अभी ये जो वैक्सीनेशन बिल गेट्स साहब ला रहे हैं, ये इसी तरफ एक कदम है। मेरे पास अभी समय नहीं मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभी होने जा रहा है। बाइबल की पुस्तकें खोल लें नबियों की, और प्रकाश की पोथी खोल लें और दुनिया की न्यूज़ पढ़ने शुरू कर दें। ये पहले लिखी गई न्यूज़ है। 3500 साल पहले यहोवा ने लिख दिया, 2000 साल पहले यहोवा ने लिख दिया, जो अब पृथ्वी के ऊपर घट रहा है। हालेलुया। ये जंगली बूटी जो है ये तलीम में आ रही है। जो ये तलीम दे रहे हैं ना पादरी लोग अमेरिका में, अभी कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअल और गेज हेवन में चले जाएंगे। गॉड इज़ मर्सीफुल, ही विल एक्सेप्ट देम। एक बड़ा फेमस अमेरिका का प्रीचर वो कह रहा है, गॉड्स ओपिनियन ऑन होमोसेक्सुअलिटी एंड LGBTQ इज इवॉल्विंग। दे आर सेइंग वर्ड ऑफ गॉड इज इवॉल्विंग। आपको मालूम, यूरोप की कई ऑर्गेनाइजेशन बाइबल को खुद ट्रांसलेट करना चाहती हैं, एंड दे वांट दिस ओरिजिनल बाइबल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, एंड दे वांट टू इसको ट्रांसलेट करके, इंटरप्रेट करके खुद लोगों को देना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लॉज आ गए, कनाडा में ऐसे लॉज आ गए, ब्रिटेन के अंदर ऐसे लॉज आ गए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसे लॉज आ गए हैं जो परमेश्वर के कलाम के खिलाफ हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब आप डिनाई नहीं कर सकते एक होमोसेक्सुअल पादरी को ऑर्डेन करने से या लेस्बियन औरत को ऑर्डेन करने से। अब आप कनाडा के अंदर प्रीच नहीं कर सकते ओपनली अगेंस्ट होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गेज। आपको मालूम सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कितनी हैं लोगों की, मालूम आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैंने एक फॉर्म देखा, उसके अंदर 23 कॉलम्स हैं आपकी जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए।
मैंने तो 3 ही कॉलम देखे थे, मेल, फीमेल और अदर्स। अभी ट्रांसजेंडर, बायोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, एनिमल के साथ ये वो, पता नहीं शैतानी काम बदकारी का कितना तगड़ा जोर है। ये फॉलन दुनिया के अंदर, आपको मालूम ब्रिटेन में भी ये लॉ है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसे लॉज दुनिया के परवर्ट लॉज डिफाइन करते हैं, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, लेकिन आपका जेंडर फिक्स्ड नहीं है। यू आर जेंडर फ्लूइड। अभी लॉज आ रहे हैं, यू कैन नॉट कैटेगोरिकली से, अगर आपकी बेटी पैदा होती है तो आप लिख नहीं सकते कॉलम में ये फीमेल है, बेटा पैदा होता है तो लिख नहीं सकते ये मेल है। क्यों? क्योंकि ये इलीट लोग, ये डीप स्टेट, ये आपके ग्लोबलिस्ट, ये नियो कम्युनिस्ट लोग, ये आपके जो डार्क अकल्टिक सोसाइटीज़ हैं, फ्री मेसनरी और जो इल्यूमिनाटी और जो दुनिया को कंट्रोल करने वाली पावर्स हैं, जो हमें पुश कर रही हैं इस वैक्सीनेशन के, यही लेकर आए हैं इस वायरस को, और इस वायरस का तोड़ भी। जैसे कहते हैं ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। तो ये तो कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हमने डिसाइड किया कानून ने, वो फिक्स्ड है, लेकिन आपके बच्चे की सेक्सुअल जेंडर जो है वो क्लासिफिकेशन फिक्स नहीं है। बच्चे को जेंडर फ्लूइड बोलिए आप। Let the child decide when he is grown up at the age of 5 and 6 whether the child wants to be a girl or wants to be a boy. देख रहे हैं आप कितनी परवर्ट दुनिया है। अमेरिका में ड्रैग क्वींस कितना पैसा कमा रही हैं, सारी गंदा सेक्सुअल काम बच्चों के आगे करके दिखाती हैं ड्रैग क्वींस। Enemy is after your children. Enemy is teaching all the crap to your children in the West, in Europe, in Britain and in the Pacific region. They want to steal away your children. क्यों? क्योंकि ग्लोबलिस्टों को पता है ये जो बच्चे हैं यही 5-7 साल के बाद बड़े होंगे और उस समय एंटी क्राइस्ट आया होगा, ये उसकी किंगडम के रिसिपिएंट हैं, उसकी किंगडम के सिटीजन्स हैं ये। तो प्रभु के दास ने कहा कि तुम व्यवस्था तोड़ोगे, तुम्हारे ऊपर श्राप ऐसे आएंगे। हालेलुया। और आपको मालूम क्या किया यहोशू ने? यहोशू इसराइल को लेके गया शिकेम में। शिकेम एक ऐसे तराई है, वादी है, उसके इधर भी एक माउंट है, माउंट एबाल, इधर माउंट गिरिजीम है। 6 ट्राइब एक माउंट पे चली गई, 6 ट्राइब एक माउंट पे चली गई। दोनों पहाड़ों के बीच में 1 मील का फासला है, और इस तरफ यहोशू और उसका घराना खड़ा हुआ है। और ये जो 28 चैप्टर है, 29 चैप्टर है, ये बोला गया, ये सबसे बड़ा नेचुरल एम्पी थिएटर था वहाँ पे। और यहोवा ने कैसे इनकी आवाज़ गुंजा दी उस तराई की वादी में। इस पहाड़ पे यहोशू वचन बोलता था तो ये पहाड़ बोलता था उस पर ब्लेसिंग हो, और दूसरा पहाड़ पे जो 6 ट्राइब थी वो बोलती थी जो ना परमेश्वर यहोवा के आज्ञाओं को, वचनों को माने, उस पर श्राप हो। एक तरफ ब्लेसिंग बोली जा रही थी, एक तरफ श्राप, एक तरफ ब्लेसिंग, एक तरफ श्राप, एक तरफ ब्लेसिंग, एक तरफ श्राप। वो ऊंची आवाज में रिवर्बरेट कर रहे थे यहोवा के कलाम को। और उस समय जो कौमें थी वहां की, वो डर रही होंगी सुन के उनका गुंजन। आपको मालूम वो लगभग 2.5 मिलियन से 2.8 मिलियन, 25 लाख, 28 लाख या 30 लाख लोग थे। वो 10-10, 12-12 लाख से ज्यादा एक पहाड़ पे खड़े हुए और एक स्वर में चिल्लाते थे जब वो बोलते थे ब्लेसिंग हो। एक पहाड़ बोलता था ब्लेसिंग, गिरिजीम पहाड़, एबाल पहाड़ बोलता था कर्सेस हो। हालेलुया। एक पहाड़ ब्लेसिंग को रिवर्बरेट कर रहा है, और यहोशू ने वहां पे एक स्टोन रखा, बहुत बड़ा स्टोन था, 7 मीटर से ज़्यादा का। 18 सेंचुरी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट गए वहाँ पे, उस स्टोन को उन्होंने रिट्रीव किया और उन्होंने स्टोन के 3 हिस्से कर दिए। फिर उनमें से कोई क्रिश्चियन था, उन्होंने बोला बाइबल खोल के देखें। जब उन्होंने बाइबल खोल के देखी तो दे डिस्कवर्ड कि ये जो स्टोन था ये जोशुआ का स्टोन है। वो स्टोन आज भी वहीं है उस सिटी के अंदर, नोबलस जिसे बोलते हैं, शिकेम, उसको मढ़ दिया गया है। लेकिन उस स्टोन के ऊपर ग्रेफिटी बनाई हुई है, जो ग्रेफिटी होती है ना बनाई, टेररिस्ट लोगों ने ग्रेफिटी बनाई हुई है उस स्टोन के ऊपर, वो वहीं आज भी टेस्टमनी दे रहा है। इज़राइल गुलामी में था मिस्र में, इज़राइल को यहोवा ने छुड़ा लिया, इज़राइल को दूध और शहद की नदियों वाला देश दिया। आज्ञा दी यहोवा ने कि मेरी व्यवस्था से लिपट के रहना इसके साथ, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, इसे इधर रखना दिल में।
ये व्यवस्था की पोथी तेरी आंखों से ओझल ना हो, तेरे मुंह में रहे, तेरे दिल में रहे। जो ये व्यवस्था कहती वो तू करना, और मेरी आवाज़ को सुनना, मेरी आज्ञा को मानना। लेकिन बनी इसराइल ने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। वो इधर गुलामी में थे मिस्र में, वहाँ से छुड़ा के यहोवा दूध और शहद के नदियाँ बहने वाले देश में लाया, फिर वो गुलामी में चले गए। प्रभु कह रहा है कि क्या कहता है परमेश्वर का दास, कि वो होली है। What is God? God is holy, Joshua says. And God is jealous. In his anger, he will turn you over to your enemies. परमेश्वर का ये वर्चू प्रीच नहीं करते पादरी लोग। God is going to bless you. God is going to pour out your anointing. God is taking you to a higher dimension. आपकी ब्रेक थ्रू आ रही है। Your best is about to come. कई झूठे प्रॉफिट ये कर रहे थे 2019 में। Your best is yet to come. They are not connected. They don't know the word. इस वर्ड प्रॉफिट इस वर्ड को प्रोफेसाई करता है। प्रॉफिट गुड्डी गुड्डी चीज़ें प्रोफेसाई नहीं करता, इस वर्ड को प्रोफेसाई करेगा। When you prophesy this word, then you are a prophet of Yahweh. Hallelujah. मैंने आपको बताया था नबी क्या होता है। नबी हिब्रू वर्ड जिसके ऊपर यहोवा का हाथ आता है और उसके अंदर यहोवा का बीज होता है। बेथ नून मैंने आपको बताया था, यहोवा का बीज होता है, उसके ऊपर हाथ आता है, फिर यहोवा का बीज उसके अंदर से निकलता है। बेथ का मतलब होता है घर, नून का मतलब होता है बीज। वो यहोवा के बीज का घर होता है। हालेलुया। और मैंने बताया था कि यहोवा का हाथ जब आएगा तब प्रोफेसी करेगा वो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है मत्ती 24:15 में यीशु मसीह कहते हैं टेक हीड, सावधान रहो, क्योंकि अंत के दिनों में धोखा होगा, अंत के दिनों में शैतान भरमाने आएगा। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि भरमाने वाली शिक्षाएं देंगे पुलपिट से, वो डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस प्रीच करेंगे, बदरुओं की तालीम देंगे। प्रभु का दास कहता है, प्रभु कहता है बहुतेरों का प्यार ठंडा हो जाएगा। प्रभु का दास कहता है कि थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है स्पिरिट ऑफ अपोस्टेसी आएगी, जो विश्वास से लोगों को गिरा देगी। भटक जाएंगे विश्वास से लोग, वो परमेश्वर की ओर से अपनी आंखें हटा लेंगे। और प्रभु के वचन में लिखा है वो कानों की खुजली के लिए गुरु धारेंगे। किनीथो ग्रीक वर्ड है, किनीथो का मतलब कानों के लिए खुजली धारने का हिब्रू मतलब है किनीथो, जिसका मतलब है वो लोग अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करेंगे कि नबी हमारे लिए बढ़िया बढ़िया बातें बोले। यहोवा का सच्चा कलाम, ये कलाम नहीं सुनना चाहेंगे। गुड गुड बातें बोलिए हमारे लिए, हमारा फ्यूचर फोरकास्ट करिए, ये बातें वो लोग चाहेंगे। हालेलुया। आपको मालूम वचन में लिखा है ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं कलाम में, इज़राइल के संग घटी, ये क्यों लिखी गई हैं? 1 कुरिन्थियों 10:11 में लिखा है ये एग्जाम्पल है हमारे लिए ताकि हम इस पाप में ना गिरें। 1 कुरिन्थियों 6:11 में पौलुस कहता है तुम्हारे में से कई पहले ऐसे ही थे। ये इज़राइल को डाउन प्ले करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे संग भी ऐसा होगा यदि तुम सत्य के साथ जुड़े नहीं रहोगे। हालेलुया। एक गिरजीम और एक इबाल, इबाल पे कर्ज और गिरजीम पे ब्लेसिंग। आपको मालूम इस्राएली लोग जब गुलामी में चले गए, प्रभु ने पहले कहा था तुम आज्ञा मानोगे तो आशीष आएगी, आज्ञा तोड़ोगे तो गुलामी में जाओगे। आज चर्च भी असीरी में है क्योंकि प्रभु की आज्ञा तोड़ी है कलीसिया ने, गुलामी में है, डिसेप्शन की, झूठी तालीम की, झूठे गुरुओं की, झूठे उस्तादों की। आप अपनी डेस्टिनी में नहीं हो। बहुत सारे लोग फॉल्स अपोस्टेट फॉलन चर्च इज नॉट इन द डेस्टिनी, इज नॉट इन द प्रॉमिस लैंड। दे हैव बीन रूटेड आउट ऑफ द प्रॉमिस लैंड बिकॉज दे आर अंडर डिसेप्शन ऑफ द एनिमी। मिस्र चर्च के अंदर है, बाबिलोन चर्च के अंदर है, असीरिया चर्च के अंदर है, यूनान चर्च के अंदर है। चर्च के अंदर असीरी की आत्मा है। ये नहीं कि अब प्रभु आपको इंडिया से उठा के बांग्लादेश में गुलाम कर देगा। अब गुलामी का रूह आपके अंदर है क्योंकि आप अगर यहोवा के सच्चे कलाम से जुड़े हुए नहीं हो। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, तो वहाँ पे लिखा है
अगर इज़राइल का, फिर किसी समय आपको दिखाऊंगा इज़राइल का मैप, ऐसे उत्तरी इज़राइल है, ऊपर इज़राइल में बीच में थोड़ा सा सेगमेंट है जिसे सामरिया बोलते हैं। यरूशलेम के ऊपर 20-25 मील, उसे सामरिया बोलते हैं। सामरिया क्या था, सुनिए ध्यान से। जब इस्राएली लोग गुलामी में चले गए, नॉर्दर्न किंगडम जहाँ 10 कबीले रहते थे, वो गुलामी में चले गए असीरिया की। अशूर का राजा कुछ लोगों को पीछे छोड़ गया, लेके नहीं गया। तो अशूर के राजा ने अपने लोगों को सामरिया में भेजा। उन लोगों ने इस्राएली स्त्रियों के साथ शादी की, और अशूरी लोगों का जो सामरिया में जूइश लोग रहते थे उनके साथ कोहैबिटेशन के बाद एक मोंगरिल रेस बनी, जिन्हें समैरिटन कहा जाता है, सामरी। वो औरतें यहूदी थीं, पुरुष अशूर के थे, तो वो मिक्स कौम पैदा हुई। तो जो नीचे रहते थे यहूदा के अंदर पवित्र धर्मी यहूदी लोग, उन्होंने कभी उनको अपना नहीं माना, और जो ऊपर रहते थे वो पहले गुलामी में चले गए। लेकिन पहले जब अच्छे दिन थे, वो अच्छे लोग थे, तब जब वो आते थे ऊपर से, यहूदा में जो सदर्न किंगडम थी वहाँ पे टेम्पल था यरूशलेम में, तो वो क्या करते थे, वो ऐसे सीधा रोड है, सीधा रोड नहीं लेते थे, यर्दन को यूं क्रॉस करके, ऐसे यूं क्रॉस करके, यूं यर्दन के परले तट से आते थे, फिर यूं अंदर घुसते थे, लंबे रूट से आते थे, लंबे राउट से, क्योंकि वो सामरियों की परछाई पड़ने नहीं देना चाहते थे। तो आपको मालूम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने महसूस किया कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कंपेल कर रहा है कि यीशु मसीह सामरिया में से होके गुजरे। जितनी रेशियल बाउंड्रीज थी, रेशियल हेट्रेड थी, नफरत थी जातिवाद की, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा उसे गिरा रहा है। यीशु मसीह बीच में से होके गुजरता है, जबकि कोई यहूदी वहाँ से गुजरता नहीं, और साइखर में आ जाता है, सुखार नाम के इलाके में। सुखार बिल्कुल शिकेम के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे कुआं है याकूब का, वहाँ बैठ जाता है। वहाँ पे सामरी औरत आती है, वो यहूदन है लेकिन मिक्स ब्रीड है, और यीशु मसीह उससे पानी मांगता है। आपको मालूम प्रथा क्या थी? औरतें, जूइश औरतें एक थैला लेके चलती थी बर्तन के साथ मिट्टी का। अगर कोई परदेसी आता था, उस बर्तन में पानी डाल के देती थी पीने के लिए। तो वो औरत जब यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करती है, यीशु मसीह की हजूरी उसको बदलती है। यीशु मसीह उससे बातें करता है कि अपना पति ले आ। वो कहती मेरा पति नहीं है। तो यीशु मसीह बताता है तू 5 कर चुकी है लीगली, 6ठे के साथ रह रही है। 6 पुरुष उसके जीवन में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 7वां पुरुष है जो कुएं की मुंडेर पे बैठा उसकी इंतज़ारी कर रहा है। ये 7वां पुरुष जीवन बदल देता है। हालेलुया। और आप देखें, वो यीशु मसीह से डायलॉग करती है, पाप में यहाँ तक डूबी है औरत, और कहती है कि हमारे लोग इधर आराधना करते हैं। कहाँ? गिरजीम पहाड़ पे, ब्लेसिंग के पहाड़ पे। सामरी लोगों ने अपना धर्म वहाँ बना लिया था। जब ये गुलामी में चले गए इस्राएली लोग, सामरिया में जितने वापस रह गए उन्होंने टेम्पल बना लिया था। आज भी वहाँ पे जाके आपको टेम्पल के रूइन मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, जो पुराना टेम्पल था सामरी लोगों का। आज भी 5000 जूज हैं इज़राइल में जो समैरिटन हैं, वो अपने अलग कल्चर के अंदर जीते हैं, दूसरे यहूदियों के साथ मिलते नहीं हैं। हालेलुया। आपको मालूम, एजरा, नेहेमिया और जरूबाबेल 3 बंदे थे जिन्होंने सेकंड टेम्पल बनाया और यरूशलेम की दीवारों को खड़ा किया। गुलामी के बाद, 70 साल की गुलामी के बाद साइरस राजा ने इनको वापस भेजा। तो एजरा का काम क्या था? एजरा का काम था याजकों को शुद्ध करना, यहोवा के लिए याजक खड़े करना जो टेम्पल में यहोवा की उपासना करें। तो एजरा की पुस्तक के 10 अध्याय को पढ़िएगा आप ध्यान से। एजरा आके देखता है कि जो जूइश याजक थे वो सामरिया में आ गए, और सामरिया में आके उन्होंने दूसरी जात की, अशूर की औरतों के साथ शादी कर ली। बहुत सारे याजक मिक्स हो गए थे, मिक्स ब्रीड था, उनकी औरतें दूसरी थी। तो क्या वचन देता है एजरा? कि इन्हें त्यागो और अपने आप को शुद्ध करो। तो यहूदी लोग क्या करते हैं? यहूदी लोग उन अन्य जातियों को तो त्यागते हैं कई, लेकिन कई अपनी जो लीगल औरतें होती हैं उनको भी त्याग देते हैं, जो देखने में सुंदर नहीं लगती या उम्र में बूढ़ी दिखाई देती थी। इसलिए मलाकी नबी कह रहा है, मलाकी नबी उसी समय का नबी है। मलाकी नबी वो करप्शन देखता है यहूदियों की,
वो अन्य जाति की औरतों को तो छोड़ते हैं, वो उन औरतों को भी छोड़ रहे हैं, यहूदी औरतों से जिन्होंने शादी की थी, जो शायद सुंदर नहीं रह गई, अब शायद उम्र में बढ़ गई हैं। तो वो कहता है कि ये तेरी यूथ की वाइफ है। याहवे हेट्स डिवोर्स, यहोवा तलाक से नफरत करता है। वो बात 3 अध्याय में कर रहा मलाकी नबी। तो आपको मालूम, अगर आप जोसेफस की पुस्तक पढ़ेंगे, बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, बाइबल में ये बात नहीं है। सनबलाट जो था वहाँ का गवर्नर था सामरिया में। सनबलाट बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा था, बड़ा डिमोनिक बंदा भी था। उसकी बेटी ने एक याजक से शादी की थी। तो जो मसला पड़ता है ना, नेहमाया के समय ऑपोजिशन आती है, सताव आता है, उसकी कहानी ये है, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड थे। हालेलुया, मिक्स हो गए थे। तो प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है, एक वचन मैं चाहता हूं जल्दी से पढ़ लीजिए, गलेशियंस, गलतियों की पत्री, उसका 1 अध्याय निकालें जल्दी से। गलतियों की पत्री 1 अध्याय, हालेलुया। गलेशियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से, क्या कहता है? प्रेट पलूस, आई मार्वल दैट ye आर so soon removed from him that called you into his grace of Christ unto another gospel। कहता मैं हैरान हूं कि तुमने दूसरे सुसमाचार पे विश्वास कर लिया, सच्चे सुसमाचार को छोड़ दिया है। which is not another but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him be accursed। झूठे शैतानी सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है। आपको मालूम गॉस्पल को कैसे परवर्ट किया गया 19th सेंचुरी में? हिस्ट्री पढ़ के देखें कैसे गॉस्पल को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया गया और यीशु मसीह को मटेरियल परसूट की फुलफिलमेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेश किया गया। कैसे यीशु मसीह आपकी सारी मटेरियल संसारिक ख्वाहिशों को पूरा करेगा, इसलिए उसको फॉलो करो। कैसे क्राइस्ट आपको प्रॉस्पेरिटी से भर देगा ताकि आप पूरी दुनिया में से न्यारे हो जाओ, ऐसे सुसमाचार को प्रीच किया गया। कैसे सीकर सेंसिटिव गॉस्पल अमेरिका ने प्रीच की। को मालूम सीकर सेंसिटिव गॉस्पल क्या है? जिसमें लोगों को ऑफेंड नहीं करना। वो प्रीचर कहते हैं, बड़े फेमस प्रीचर हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, वो कहते हैं कि लोगों को आपने हेल के बारे में नहीं बताना, तौबा करने के लिए नहीं कहना, तौबा शब्द बहुत हार्श है, हेल के ऊपर प्रीच नहीं करना। यू डोंट बी, आपको ब्रिमस्टोन फायर वाले ग्लूम डूम के प्रीचर नहीं बनना है। आपने हैप्पी गुड एंड हैप्पी गॉस्पल प्रीच करना है और लोगों को वू करना है। जब लोग आ जाएंगे अपने आप प्रभु काम करेगा। ये फॉल्स गॉस्पल है कि लोगों को रिपेंट के लिए ही कहना है। जस्ट प्रीच द लव ऑफ गॉड। आपने हेल प्रीच नहीं करना, जजमेंट तो कभी प्रीच नहीं करना। आपने होमोसेक्सुअल गेज के विषय में कोई बुरी बात नहीं कहनी। बोलना गॉड लव्स यू, गॉड वांट्स टू एम्ब्रेस यू, गॉड विल टेक यू इनटू हिज किंगडम विदाउट यू रिपेंटिंग एंड चेंजिंग योर लाइफ एंड कैरेक्टर। ऐसे गॉस्पल को परवर्ट किया गया हाइपर ग्रेस थियोलॉजी ने और प्रॉस्पेरिटी की फॉल्स गॉस्पल ने, और एक डोमिनियन थियोलॉजी आई कि हम डोमिनियन लेंगे पूरी दुनिया में। इससे पहले कि मसीह आए, वील हैव डोमिनियन। फिर फॉल्स एपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन का गॉस्पल आया। फिर वर्शिप को एक आइडल बना के, वर्शिप को एक मूर्ति बना के पेश किया गया। बहुत सी कलीसियाएं यीशु मसीह की वर्शिप नहीं करती, वो वर्शिप की वर्शिप कर रही हैं। जो फैंसी वर्शिप हो रही ना, हैवी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैज, रॉक, हैवी मेटल, सब कुछ फ्यूजन किया गया बीच में, और लोगों को मालूम नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी बज रही है। आपको मालूम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ सैटेनिक फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ डिवाइन फ्रीक्वेंसीज हैं। हर एक ऑक्टेव की अलग अलग मीनिंग है। हेवन के अंदर एक हेवनली डिवाइन म्यूजिक है। म्यूजिक को एक आइडल बना के डिस्प्ले विंडो में रखा गया टू वू पीपल, और बड़े बड़े थिएटर, वहाँ पे फैंसी डिस्को लाइट, क्रिस्टल बॉल और फॉग मशीन्स, और पूरा वो बना के सिस्टम बना के पेश किया गया। गॉस्पल नहीं रही वहाँ पे। एंटरटेनमेंट है 95% और छोटा सा मैसेज है मोटिवेशन का, मोटिवेशनल।
Look into the mirror, say to yourself, you are prosperous, you are wealthy, you are handsome, you are beautiful, God is going to bless you, everything is for you, nothing is against you, I am the righteousness of God, I am the purity of God, I am prosperous. संत पौलुस कहता, what a wretched man I am. मैं कितना अभागा व्यक्ति हूँ, कौन मुझे इस पाप की देह से छुड़ाएगा. क्या गॉस्पल थी और क्या बना दिया इसको. 100 साल पिछले पढ़ के देखिए कितनी परवर्ट हुई. मैंने अमेरिका के कई फेमस प्रीचर की अब प्रीचिंग सुनता हूँ और मैंने उनके वीडियो निकाले 40 साल पुराने. 40 साल पहले कुछ और प्रचार करते थे. कई फेमस प्रीचर 40 साल पहले इस पे प्रचार करते थे, भैयो आर्क ऑफ द कवनेंट पे, इस पे प्रचार करते थे, मनोरा के ऊपर, मूसा के खेमा के ऊपर प्रचार करते थे, सोलोमन की टेंपल के ऊपर प्रचार करते थे. ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के टेक्स्ट को लेके, जैसे मैं टेक्स्ट को लेता हूँ, टेक्स्ट को लेके प्रचार करते थे. अब वो साइकोलॉजी सिखाते हैं, लोगों को अच्छी लगती है साइकोलॉजी. अब वो मोटिवेशनल प्रीचिंग, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं. अब वो डायरेक्ट एलेस्टर क्रॉली की किताबों से सिखा रहे हैं, फ्री मेसनरी की बुक से. थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लबास्की की टीचिंग दे रहे हैं. कबाला की, जूइश, डार्क जूइश लोगों की शैतानी टीचिंग जो कबाला है उसे टीच कर रहे हैं. नॉट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. कैसे परखेंगे? अगर आपके अंदर कलाम होगा तभी तो परखेंगे ना आप. इसके संग जुड़े भाइयों और बहनों, सच्चे कलाम की ओर. ब्लेसिंग और कर्सेस हैं. अगर प्रभु यहोवा के संग चलोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी आवाज़ को सुनोगे, मतलब व्यक्तिगत रोज रिश्ता रखेंगे, और जो यहोवा की आज्ञाएं हैं, यहोवा का वचन है, विधियां हैं, ये इधर लिखी होंगी अंदर आपके, तब आप स्वर्ग जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा. केवल दुल्हन जाएगी. समझ रहे हैं आप? बराती नहीं जाएंगे. बाइबल बताती है दुल्हन जाएगी, बराती नहीं. बहुत सारे बराती हैं, इकट्ठे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगों में. अभी बंद होगी, अब तो बहुत बुरा हाल होगा उनका. दुल्हन जाएगी जिसने तैयार किया है दूल्हा के लिए. बराती तो एंजल हैं, समझ रहे हैं? लड़की वालों की साइड से और कोई नहीं जा रहा. रिश्तेदार परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं, परमेश्वर के पोते पोतियां नहीं हैं. पुत्र और पुत्रियां बनिए. पुत्र और पुत्रियां नया जन्म पाके, मेमने के लहू के द्वारा धुल के, कलाम के अविनाशी बीज के द्वारा, पवित्र आत्मा के निर्मल जल के द्वारा नया जन्म पाइए. रिश्ता बनाइए. आपका नाम उसके जीवन की किताब में होना चाहिए. इसकी गवाही आपके अंदर होनी चाहिए, मेरा नाम उसकी किताब में है. यीशु मसीह ने झुक के ज़मीन के ऊपर मिट्टी में लिखे थे ना, मैंने आपको बताया नाम. किन के लिखे थे? उनके. यिर्मयाह 17:13 में लिखा है, जिन्होंने जीवन के जल के सोते को त्यागा है, जिन्होंने अपने लिए हौद खोदे, धर्म बनाया है, जिन्होंने यहोवा को धर्म बना दिया था. मज़हब में आज कलीसिया के अंदर धर्म है, ईसाई धर्म, इसको धर्म बनाया गया है. ये सच्चा जीवित कलाम यीशु मसीह की सच्ची हजूरी नहीं है. इसलिए निकल आओ. मिस्र अंदर घुस गया है, बेबीलोन अंदर घुस गया है. परमेश्वर दुल्हन को तैयार कर रहा है, बरातियों को नहीं. आंखें बंद कीजिए. फादर, मे योर ब्लेसिंग बी अपॉन योर पीपल दैट हर्ड योर वर्ड. आई प्रे दैट दे विल बी ऑन माउंट गिरजीम, वेयर दे विल से ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, blessing. Father, may people who are on Mount Ebal, may you draw them on the mount of blessing in the name of Jesus Christ. Father, I release your anointing over these people who hearken unto the voice, your voice, Lord, through your servant. We bless you, we give you glory. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं. प्रभु यीशु आपको आशीष दे. सबको जय मसीह की.